مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کہتے ہیں پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ دورہ امریکہ کے بعد لندن پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا پی آئی اے کے نجکاری کے حوالے سے میری تجویز زیر غور ہے۔ پنجاب میں مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں، پنجاب اور وفاق کی کارکردگی سے مطمئن ہوں۔ نیو یارک میں لیگی کارکنوں سے خطاب میں سابق وزیر اعظم نے کہا پنجاب حکومت کو تجویز دی پی آئی اے خرید لیں یا کوئی نئی ایئر لائن شروع کریں۔ مریم کو کہا نئے جہاز لائیں اور برانڈ نیو ایئر لائن پاکستان کو ہم دیتے ہیں، اسے ایئر پنجاب کا نام دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے ایئر لائن سے متعلق غور و خوض ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف نے اپنے دور میں پی آئی اے کو تباہ کیا۔ ان کے وزیر نے اسمبلی فلور پر کہا ہمارے پائلٹس کی تعلیمی قابلیت پوری نہیں۔ لاہور میں گرین لاک ڈاؤن بھی اسموک ختم نہ کر سکا۔ صوبائی دارالحکومت آلودہ ترین شہروں میں 650 اے کیو آئی کے ساتھ سر فہرست۔ بھارتی دارالحکومت دہلی 429 اے کیو آئی کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گیا۔ چینی دارالحکومت بیجنگ 177 اے کیو آئی کے ساتھ تیسرے نمبر پر۔ بھارتی علاقوں میں فصلوں کی باقیات جلانے سے اسموک میں اضافہ، شدید دھواں پاکستان میں داخل۔ آئندہ 48 گھنٹوں میں اسموک کی شدت میں مزید اضافے کا امکان۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے تیز ہواؤں کا نقشہ جاری کر دیا۔ ہواؤں کا رخ بدلنے سے گزشتہ 5 روز لاہور میں فضائی آلودگی اوسط 180 پر رہی۔ پنجاب میں کلین اپ آپریشن۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں پانی کا چھڑکاؤ، تجاوزات کے خلاف کارروائی کی، مختلف علاقوں میں جنریٹرز چیک کیے گئے۔ پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجھوتا کو اٹک سے بازیاب کرا لیا گیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ناکے پر ایک مشکوک گاڑی کو روکا گیا۔ گاڑی میں موجود اغواکاروں نے فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ پر اغواکار گاڑی اور مغوی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ گاڑی میں موجود شخص کی شناخت انتظار پنجھوتا کے نام سے ہوئی۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ انتظار پنجھوتا کو تھانے منتقل کر کے بیان بھی ریکارڈ کرا لیا گیا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے انتظار پنجھوتا کی ویڈیوز بنانے والے پولیس افسروں کو معطلی کا مطالبہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ ان کے خیال میں وہ اغوا کا حصہ ہیں، اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پنجاب میں 36,365 کی گنجائش، قیدیوں کی تعداد 67,837 ہے۔ لاہور میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا مشاورتی اجلاس سے خطاب، کہا 36,128 قیدی 1 سال سے زیادہ عرصے مقدمے کی سماعت کے منتظر۔ منصفانہ قانونی فریم ورک یقینی بنانے کے لیے جیل کا مؤثر نظام ضروری۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن کے جمع کردہ اعداد و شمار سے ملک میں تشویشناک صورتحال کا پتہ چلتا ہے۔ اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم، سینیٹر احد چیمہ اور خدیجہ شاہ کی بھی شرکت۔ صوبہ بھر کی جیلوں کا معائنہ کرنے اور سفارشات دینے کے لیے ذیلی کمیٹی قائم۔ کمیٹی میں پی ٹی آئی کی خدیجہ شاہ، نون لیگ کے سینیٹر احد چیمہ، ایڈوکیٹ سائمہ خواجہ اور جسٹس ریٹائرڈ شبر رضا رضوی شامل۔ 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل کا چیلنج۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 5 نومبر کو جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس طلب کر لیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت تشکیل 9 کے بعد جوڈیشل کمیشن کا یہ پہلا اجلاس ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اجلاس کا ایجنڈا 2 نکات پر مشتمل۔ پہلا نکتہ کمیشن سیکریٹریٹ کا قیام، دوسرا نکتہ آئینی بینچز کے لیے ججز کی نامزدگی کا ہے۔ اجلاس کی صدارت چیف جسٹس پاکستان کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں چیف جسٹس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین شریک ہوں گے۔ اٹارنی جنرل منصور اوان، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، فاروق نائک اور شیخ آفتاب شامل۔ اپوزیشن سے عمر ایوب، شبلی فراز، خاتون کی سیٹ سے روشن خورشید بروچہ اور پاکستان بار کے اختر حسین شرکت کریں گے۔ ہماری تاریخ میں 17 حملے ہم نے کیے تھے نا پانی پت پر۔ 17 حملے تو ہماری تاریخ میں ہیں کہ 17 ٹائمز تو ہم نے کرنے ہیں، وہ تو ہمیں اپنی تاریخ بتا رہی ہے۔ ابھی تو ہم نے 1-2 کی ہیں، ابھی تو انشاءاللہ سے پہلے یہ اچیو کر لیں گے۔ تھینک یو۔ اب یہ ایک فائنل کال ہوگی اور یہ فائنل کال ایسے ہوگی کہ میرے خیال میں اب سر پہ کفن باندھ کے ہم نکلیں گے، کیونکہ پرامن رہ کے مارے کھا کے اس کے بعد ہمارے ورکر گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم پرامن ہوتے ہیں۔ پہلے تو ہم 9 تاریخ کو ثوابی کے اوپر ایک انشاءاللہ ایک بڑا اجتماع کر رہے ہیں۔
पुरअमन होकर बहुत मार खा ली, अब पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे। अल-यमीन गंडापुर कहते हैं अब फाइनल एहतजाज की कॉल देंगे। 17 हमले तो हमारी तारीख में हैं, अभी तो 2 किए हैं। 8 नवंबर को पेशावर में होने वाला जलसा 9 नवंबर को सवाबी में करेंगे। लाहे अमल दिया जाएगा, हम निकलेंगे और अपने हुकूक लेकर आएंगे। जाली केसेस में गिरफ्तारियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं, ना किसी से डरता हूं, ना झूठ बोलने की ज़रूरत है। अपनी बात खुद बताऊंगा, दूसरों की बात पर यकीन ना करें, झूठे बयानी पर कान ना धरें। आइन तोड़ने वालों को जब तक सजा नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। कोई भी रियासत नहीं तोड़ सकता। बंदूक उठाकर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वाले गलत हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं पसमानदगी के नाम पर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए इल्म और तरक्की के दरवाजे खोल रहे हैं। असातिज़ा की जिम्मेदारी है माशरे को बिगाड़ से निकालें। असातिज़ा बच्चों को हकीकत से आशना करते हुए इनकी मुस्बत रहनुमाई करें। बलूचिस्तान में पहली बार बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। अक़लियतों समेत हर जिला से हर साल 10 बच्चे बच्चियां इस्तिफादा कर सकेंगे। बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमा 1.5 माह में खत्म हो जाएंगे। बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा हुकूमत बानी पीटीआई को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही है। बुश बीबी सियासत में आने का इरादा नहीं रखती। बुश बीबी सियासत में आए तो खुश आमदीद कहा जाएगा। सूबाई हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाने जा रही है। नौजवानों के लिए रोजगार, तालीम और सेहत स्कीमों की इंश्योरेंस होगी। ट्रांसमिशन कंपनी के क़याम से सस्ती बिजली की फराहमी मुमकिन होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एहतजाज, जलसे और नाच गाने करने में मसरूफ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं जलसे जुलूस से किसी को आज़ादी नहीं मिल सकती। पीटीआई शायद संजीदा नहीं। अगर बुश बीबी को अदालत से रिलीफ मिला तो फिर एहतजाज की क्या ज़रूरत है। बुश बीबी पहले भी सियासत करती थीं, यहाँ भी कर रही हैं। सबको मालूम है KP हुकूमत के पास यूनिवर्सिटीज़ के लिए फंड्स नहीं तो PIA कैसे खरीद सकती है। सूबाई हुकूमत ताजिरों का साथ दे, यहाँ अफगानिस्तान वाली सूरत हाल पैदा ना हो जाए। क्या पीटीआई का फैसला कुन एहतजाज का ऐलान दूसरे मुल्क में होने वाले इंतखाबात से मशरूत है। शहरी रहमान का तहरीक इंसाफ के एहतजाज के ऐलान पर रद्द-ए-अमल, कहा हकीकी आज़ादी और अमरीकी मुदाखलत नामंजूर के नारे लगाने वाले अमरीकी इंतखाबात में पसंद के उम्मीदवार की जीत की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अमरीकी इंतखाबात वहाँ का अंदरूनी मामला। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली अमरीकी इंतखाबात के नताइज पर मबनी नहीं होनी चाहिए। डील और NRO का नया नाम है मुफाहमत, और वो बैरिस्टर साहब मुझे नहीं पता किस तरफ से खेलते हैं, लेकिन चले अच्छे मासूम आदमी हैं, सच बोल देते हैं। तो उन्होंने कल बता दिया कि डील के नाम पे मुफाहमत हुई है। डील और NRO का नया नाम मफाहमत। बैरिस्टर सैफ ने बताया डील के नाम पर मफाहमत हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्ज़िमान को प्रमोशन, छुट्टी और इनाम दिया गया। इस इक़दाम से पीटीआई की सोच और मकसद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पीटीआई वाले ट्रंप के जीतने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे लगता है ट्रंप इनकी खाला का बेटा है। अब नया स्टिकर बना लें, हम ही गुलाम हैं। ट्रंप की जीत से पाकिस्तान की सियासत का क्या लेना देना। इस जमात का मकसद ही मुल्क में फितना और फसाद पैदा करना है। इनको अपने सूबे के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। पीटीआई वाले हर वक्त लाशों की तलाश में रहते हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद का फौजी ट्रायल होना चाहिए। अल-यमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट मौजूद अदालत पेश हो रहे हैं या नहीं। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के जज का इस्तफसार। वकील ने कहा अल-यमीन गंडापुर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव सरकारी मसरूफियात के बायस आज अदालत पेश नहीं हो सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने 8 नवंबर तक जमानत मंजूर कर रखी है। अदालत 8 नवंबर के बाद की कोई तारीख दे दे। जज की पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा अदालत में जमा करवाने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट बार ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। हामिद खान के जरिए दायर दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से आईनी तरमीम के तनाजुर में किए इकदामात गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। कहा आईने पाकिस्तान को 26वीं तरमीम से पहले की सूरत में बहाल किया जाए। जुडिशल कमीशन में गैर अदालती मेंबरान की अक्सरियत से आला अदलिया में जजिस की तकर्री का अमल सियासत की नज़र होगा। दरखास्त के ज़ेर समात होने तक 26वीं आईनी तरमीम के तहत इकदामात से रोका जाए। कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ कहते हैं टैक्स दायराकार में इजाफे के लिए मुतादिद इक़दामात किए। मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना, वक्त की ज़रूरत।
हर शोबे में बिला इम्तियाज टैक्स वसूल करना है। टैक्स ना देने वालों का बोझ फाइलर क्यों उठाएं। टैक्स मुहासिल में इजाफे के साथ अंडर इनवॉइसिंग को भी रोका है। यूट्यूब से लाखों डॉलर कमाने वालों को भी टैक्स नेट में लाना है। वर्चुअल मीटिंग हुई, ना ही IMF से नजरसानी की दरख्वास्त की। FBI ने IMF की तरफ से अहदाफ में नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद करने की खबर बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दी। बयान में कहा IMF से कोई मुलाकात हुई, ना ही ये मौजू कभी एजेंडे पर रहा। IMF के साथ किसी भी इजलास में अहदाफ पर नजरसानी पर बात नहीं की गई। ये मुल्क 40 लोगों या 100 IPPs का नहीं, 25 करोड़ आवाम का है। हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट ने IPPs मुआहिदों को संजीदा लिया। 14 साल इन पावर प्लांट्स ने आवाम का खून चूसा। चेयरमैन एप्टमा गौहर एजाज का तकरीब से खिताब, कहा 30,000 करोड़ 5 साल में IPPs को अदा किए गए, मईशत में नहीं। मसला गलत पॉलिसी साजी में है। 1,10,000 करोड़ सालाना बंद IPPs को दिए गए। मुल्क में पोलियो वायरस के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। मजमूई तादाद 45 हो गई। लकी मरवत में एक बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। दूसरा पोलियो केस डीआई खान में एक बच्चे में सामने आया। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रमसाल बलूचिस्तान से 22, सिंध से 12 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। KPK से 9, पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद, शौहर माजिद बशीर ने अबूरी जमानत करा लिया। अदालत ने 18 नवंबर तक अबूरी जमानत मंजूर की। मुलजिम के खिलाफ लाहौर के थाना डिफेंस सी में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने अदाकारा का तिब्बी मुआयना भी करवा लिया। वजीर दाखिला से FC में तैनात पुलिस अफसरान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, FC के जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत बख्शती हैं। FC के शहदा हमारा कीमती सरमाया हैं। FC को जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से लैस किया जा रहा है। नौजवान अफसरान किसी भी इदारे में नई जान डाल सकते हैं। लोगों से अच्छा सलूक, अच्छे अफसर की पहचान। रिवायती ताल्लुकात के बजाय लोगों से मजबूत ताल्लुक इस्तेवार करें। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने शौहर की बिला इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को तनसीख निकाह का हक देने का फैसला गैर शरई करार दे दिया। अल्लामा रागिब नईमी कहते हैं, मर्द के दूसरे, तीसरे या चौथे निकाह पर शरीयत में कोई कदगन नहीं। आइन के मुताबिक कोई भी कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम, लेकिन इस पर शरई राय रखने का हक हासिल। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक लेकिन शरीयत के मनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को निकाह खत्म करने का हक देने का फैसला किया था। हुक्म में कहा गया था, इजाजत के बगैर खावंद की दूसरी शादी पर पहली बीवी निकाह का मुआहदा खत्म कर सकती है। PCB लाहौर की साबिक ब्यूरोक्रेसी पर मेहरबानियां। लाहौर के साबिक डिप्टी कमिश्नर्स को PCB में अहम ओहदे मिलने का इम्कान। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर को तब्दील किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक साबिक DC लाहौर सुमैर अहमद सईद की बतौर COO PCB तैनाती का इम्कान। PCB विमेंस विंग की सरबराही साबिक DC लाहौर राफिया हैदर को दिए जाने। मारूफ फोक गुलकारा और बुलबुल सहरा रेशमा की 11वीं बरसी। बुलबुल सहरा के नाम से शनाख्त पैदा करने वाली फोक गुलकारा रेशमा 1947 में राजस्थान के शहर बीकानेर में पैदा हुई। रेशमा तवील अलालत के बाद 66 बरस की उम्र में 3 नवंबर 1913 को लाहौर में इंतकाल कर गईं। 12 साल की उम्र में अपने फनी करियर का आगाज करने वाली रेशमा ने अपने करियर में मुतादिद गाने गाए।